نے بیٹی کو رخصت کیا. کائنات میں کوئی میرے حضور سے بڑی ذات ہے کوئی؟ سارے بولے ہے کوئی؟ میں جانتا ہوں میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں، لیکن کل کہو گے کہ باتیں سچ کہہ کے گیا تھا. حضور سے بڑا کوئی نہ ہے نہ ہوگا. بے شک بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آئی، بیٹی رونے لگ گئی. حضور نے فرمایا میری فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ ام سلمہ کہنے لگی حضور آج فاطمہ کو خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی. بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کا باپ کا گھر چھوڑنا، اگر ماں نہ ہو تو بہت یاد آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ تو زہرا روئی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا خدیجہ کی یاد آئی ہے. میرے حضور آئے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بیٹی میں ماں خدیجہ تو نہیں لا کے دے سکتا تمہاری، البتہ یاد رکھو جب تمہاری ماں کا وصال ہوا تھا تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے خدیجہ نے کہا تھا حضور میری بیٹی کو ماں کا پیار بھی آپ ہی کو دینا ہے، باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے. اے خدیجہ پوری زندگی میں نے تجھے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی. حضور نے بیٹی کو سینے سے لگایا، عزت سے رخصت کیا. جب بیٹی جانے لگی کان میں کہتے ہیں اے بیٹی آج تک تیری ذمہ داری تو میرے ماتحت تھی، آج کے بعد تو علی کے ماتحت رہے گی. میری بیٹی کبھی اس حال میں میرے گھر میں قدم مت رکھ دینا کہ علی تجھ سے ناراض ہو، کبھی علی کو ناراض کر کے میرے گھر مت آ جانا. کیا حضور نہیں کہہ سکتے تھے اپنی بیٹی سے کہ بیٹی تکلیف ہو تو بتا دینا، علی میرا غلام ہے جیسا کہہ دوں گا ویسا کرے گا. لیکن نہ، خدا کی قسم شوہر دیکھو ولیوں کا سردار ہے، بیوی دیکھو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور باپ دیکھو سارے نبیوں کا سردار ہے. لیکن کردار دیکھ پیارے کہتے ہیں بیٹی آج کے بعد یہ خیال رکھنا کبھی علی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کبھی علی کو تکلیف نہ ہونے پائے. خدا کی قسم پوری زندگی سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کی رضا کے سانچے میں ڈھال دی. اللہ اکبر. حضور نے بیٹی کو رخصت کیا تھا، ایک جملہ اور کہا تھا، فرمایا تھا فاطمہ چاہتی رہی ہے کبھی علی سے اس کی حیثیت سے زیادہ سوال مت کر دینا، میرے علی کے پاس دولت زیادہ نہیں ہے، کبھی علی کی حیثیت سے زیادہ اپنی ضرورت کو ترجیح نہ دینا. اللہ اکبر. نکاح کے بعد 3 دن کے بعد حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ نظر ڈالی، دیکھ کے کہتے ہیں فاطمہ چہرے پہ زردی کیسی ہے، چہرہ پیلا کیوں پڑ گیا ہے، کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ جب حضرت فاطمہ نے کہا تھا اے علی 3 دن ہو گئے ہیں میں نے تمہارے گھر آ کر کے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا ہے، حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا فاطمہ کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگی میں نے تلاش کیا، گھر میں مجھے روٹی نظر نہ آئی اس لیے میں نے کھائی نہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ مانگ لیا ہوتا. میرے نبی کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی علی جب میں گھر سے چلی تھی میرے باپ نے کہا تھا فاطمہ کبھی علی کی طاقت سے زیادہ اس سے سوال مت کر دینا. کہتے اے علی میں نے 3 دن کا فاقہ برداشت کر لیا، یہ آسان تھا، اگر تم سے سوال کر دیتی تو قیامت میں اپنے رب کو فاطمہ کون سا چہرہ دکھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. او یار یہ نبی کی بیٹی ہے اور تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتا. میاں بیوی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہوتے نہیں ہوتے. تو جو لٹ لے کے داماد کے گھر پہنچ گیا کہ تیرا کبھی بیوی سے جھگڑا نہیں ہوا؟ بہت ہوتا. ایسے جاہل بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں. کہتا میں دیکھ لوں گا تیری اوقات کیا ہے. طلاق کے بعد تو بادشاہوں سے بھی بیٹیاں نہیں رکھی گئی. تو رکھ لے گا نہیں. اور بیٹیوں کبھی ماں باپ کے جھوٹے لفظوں میں بتانا. اگر تمہارا شوہر کہتا ہے نا میں رکھ لوں گا تو غلط ہے یہ سوچ. 3 دن تجھے مہمان سمجھ کے رکھا جائے گا اور پھر تیرا وہ حشر ہوگا کہ کتے کا حشر تجھ سے اچھا ہوگا. تو باپ کے گھر موت مانگے گی لیکن موت نہیں آئے گی. کبھی باپ کے کہنے میں آ کر کے شوہر کے خلاف کھڑی مت ہونا. یہ ہے موٹرولا G73. اس سیگمنٹ میں سب سے فاسٹسٹ اسمارٹ فون ہے. یہ انڈیا کا سب سے بڑی بات کہنے لگا ہوں. ایک دن حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے. سبحان اللہ.
सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रही है? मेरे हुजूर हजरत फातिमा पर आए, क्या देखते हैं? हजरत फातिमा का चेहरा उदास है। हुजूर ने फरमाया, फातिमा कोई बात है? सुनना इस बात को। फातिमा कोई बात है? आंख में आंसू आ गए, कहने लगे जी आका, अभी अली से जरा सी अनबन हो गई, वो अली मुझसे नाराज होकर चले गए। हुजूर जाइए मेरे अली को मना के ले आइए। क्या लहजे थे उनके यार, जिनकी पारसाई का आलम यह था कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहजे कितने मीठे। हुजूर अली नाराज हो गए हैं, मेहरबानी करें मेरे अली को मना के ले आए। मेरे हुजूर तो जानते थे तलाश करने की जरूरत क्या थी, ढूंढे वो जिसे पता ना हो और जिसके अपने इल्म का आलम ये हो, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। और जो दिलों के राज जानता हो उसे तलाश करने की जरूरत क्या है? हुजूर सीधे निकले, मस्जिद में आए, अली मिट्टी पे लेटे। मेरे हुजूर ने अली का बाजू पकड़ा, हिलाया, अली उठो। अली उठ गए, वहां कुछ नहीं कहा, हाथ पकड़ा, फातिमा की चौखट पे लाए, हजरत अली को करवट में खड़ा किया, अली को करवट में खड़ा किया, बेटी को सामने खड़ा किया, और फिर हुजूर के जुमले सुनो, हुजूर के जुमले सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते, फातिमा ये मेरा अली है, तेरा शोहर है, तेरा शोहर है, कभी आज के बाद अली का दिल ना दुखा दे। अगर तुम फातिमा ये समझती हो कि अली को नाराज करके मेरे घर आओगी तो बेशक तुम्हें दरवाजा खुला मिलेगा, मैं तुम्हें एक वक्त की रोटी तो दे सकता हूँ, लेकिन इस हाल में अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया कि अली तुमसे नाराज था तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा था, हजरत फातिमा की चीख निकल जाती है और उसके बाद हजरत फातिमा को अपनी बगल में लिया, अली को सामने खड़ा करके, अल्लाह अकबर। बाप बाप होता है और बेटी का दर्द बेटी का दर्द होता है। हुजूर ने हजरत फातिमा को सामने खड़ा किया था, फिर अली को करवट से हटाया, अली को सामने खड़ा किया और उसके बाद कहा था, अली तुम जानते हो ये मेरी फातिमा है जो माँ के प्यार के बगैर पली है, पूरी जिंदगी इसने माँ का प्यार नहीं देखा, जो भी परवरिश की है ए अली मैंने परवरिश की है, अगर मेरी फातिमा से खता हो जाया करे तो इसे माफ कर दिया करो, इसका दिल न दुखाया करो। ए अली अगर फातिमा का दिल टूटता है तो मेरा भी दिल टूट जाया करता है। हजरत अली कहते हैं हुजूर की जबान से जुमले निकल रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था ये जमीन फट जाए, अली इसके अंदर चला जाए। कहते आहत हो गई जब आका ने इतना कहा था, ए अली अगर मेरी फातिमा से कोई खता हो जाए अपनी बीवी ना समझ के कम से कम मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने अली के बाप का भी किरदार अदा किया, फातिमा के बाप का भी किरदार अदा किया। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों को ये ना पढ़ा कि तुझे ससुराल जाके शिकायत करनी है, बल्कि कहो बेटी पहले लोग अच्छे होते थे, कहते थे कि तू शादी का जोड़ा पहन के जा रही है लेकिन कफन पहन के घर से निकल रहा है। और वो ऐसी बेटियां होती थी जो बाप की लाज रखा करती थी। खुदा ना वो उसकी महफिल में आए हो, मुकद्दर के धनी हो, निकाह जब भी करो नेक लड़कियों से निकाह करो, बोलो इंशाअल्लाह। देखो जिनके हो गए वही बोल रहे इंशाअल्लाह। कॉमन एनर्जी सर, मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, दूसरा लेकर
मगर पहले होना देखा, तूने लहजे का जादूगर होना देखा, तूने आवाज की रंगीनियां देखी, अगर नहीं देखा तो कुरान का पढ़ना नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो सजदों में रोना नहीं देखा, अगर तूने नहीं देखा तो साथ में हया नहीं देखी। दावे के साथ कहता हूँ, जब तक तुम इस तरह से कदम उठाते रहोगे, बीवियां घर में तो क्या खानदान में नहीं रुकेगी। अगर चाहते हो तेरी इज्जत भी सलामत रहे, बरकत भी सलामत रहे, तो चाह दौलत वाली ना दे, दीन वाली दे। वो कुरान लेके आएगी, घर में कदम रखेगी, सिर्फ वो नहीं आएगी, अल्लाह की बरकत तेरे घर में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है, सुभान, बहुत अच्छा। ओ भाई, हक बात, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हक बात है। और देखने भेजा करो तो पहले दीनदारी देख। हक बात है, हक बात है। अगर सुकून चाहते हो जी जी, तो दीनदारी पे उसकी गौर करो, उसकी शराफत देखो। लेकिन वहां मेरे समाज, अगर गरीब बाप की बेटी है, गरीब बाप की बेटी है, पारसा है, रोजे नमाज की पाबंद है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती, तो लोग रिश्ता आते देखने के लिए इनकार कर जाते। और अगर अमीर की बेटी है, भले कितनी ज्यादा बदनाम जमाना हो, लोग आते उसे अपना के चले जाते। वजह क्या है? अमीर पर दौलत का पर्दा पड़ा है, गरीब का कसूर सिर्फ इतना है कि उसका बाप रिश्ते में 4 लाख नहीं दे सकता। ये खता है गरीब की। उस पारसा को ऐबदार बना के तुमने छोड़ दिया, और उस ऐबदार को तुमने पारसा बना के घर में ले आया। तू बीवी नहीं लाया है, घर के अंदर आग लेके आ गया है। क्या ही अच्छा होता, दौलत न देखता, गाड़ी न देखता, ये देखता ये बंदी रब से डरती है। जो रब का हक अदा कर सकती है वही शोहर का हक अदा कर सकती है। बात है, क्या बात है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो शोहर का हक अदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हक बात है। लेकिन कई कई जगह पे हमारी गलतियां, कई कई जगह पे आज बंदा बेटी को रुखसत करता, जी, गाड़ी में बैठाने आ रहा भैया, तो कान में आके कह रहा कम कोई नहीं है भाई। सही बात। लड़के वाले कम नहीं तो कम लड़की वाले भी नहीं। हक बात है, हक बात है। इसकी भी तोप में दाना भरा ही रहता है। गाड़ी में बैठाने आ रहा, कान में कह रहा रो क्यों रही है? जा कोई दिक्कत हो तो फोन कर देना, तुझे पता ही है चाबी गाड़ी में ही लगी रहती है। हक बात है। बना दिया फौजी, जी, रो क्यों रही है? तुझे पता है चाबी गाड़ी में लगी रहती है, 1 घंटी बजा देना खाली, तेरा भाई 5 मिनट में आएगा और सबको आके देख लेगा। अब बताओ क्या करेगी? जब पीछे जनरल साहब खड़े हैं, वो कह रहे फिक्र न कर, तकलीफ होगी तो तोप चलाई जाएगी, तो फौजी डरेगा नहीं डरेगा। फिर वो बेटी बन के नहीं आती, आतंकवादी बन के आती। क्या अब्बा की तो तैयारी रखी। फिर यहाँ अगर किसी ने शोहर ने कही सुनो हमारे घर करीब आज सब फजर में उठते, तुम भी उठ जाया करो, तो कहती मैं तुम्हारे बाप की नौकरानी हूँ। अब अगर आगे बोल गया तो फोन हाथ में तैयार है। हाँ, फोन हाथ में तैयार है, बटन दबा नहीं, धमाका हुआ नहीं। बेशक ये नतीजे हमारी खून के। शादी के बाद तो छोड़ो, रिश्ता हुआ नहीं, फोन भेज देना। क्यों? लल्ली बात करेगी, शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटियों को बेहया बना रहे हो। हक बात है। रिश्ता हुआ है, निकाह नहीं। ये भी तो हो सकता है कि निकाह से पहले झगड़ा हो जाए, ये भी तो हो सकता है दोनों फरीकैन के दरमियान ना इत्तेफाकी हो जाए। अगर लड़की लड़के ने बात कर ली, इनका दिल एक दूसरे से मिल गया और समझियों में झगड़ा हो गया, तो बता तेरी इज्जत बचेगी या इज्जत रह जाएगी? चली जाएगी, बच नहीं सकती। कितने केस देख लिए? हक बात है। ऐसे ही होता है। केस देख लिए। जी जी, मोबाइल दे दिया पहले ही, तो कोई बात हो गई, समझी में का शादी नहीं करते, तो फिर लड़कियों और लड़कों ने क्या कहा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? भाग गए जी। कितनी रह गई तेरी? कुछ नहीं। खुदारा पाबंदी लगाओ। ये देखने में काम छोटे हैं लेकिन रिजल्ट बहुत बड़ा है इसका। जी, हक बात। नुकसान बड़ा है। तेरा शौहर है बात करना, लेकिन निकाह क्या? सही।
24 घंटे बात करना, लेकिन निकाह के बाद। अभी रिश्ता हुआ क्या, बीवी नहीं बनी है, बेशक अभी निस्बत जुड़ी है, तुझ पे उसका हक नहीं है, उस पे तेरा हक नहीं है। जी जी और अगर शादी के बाद मोबाइल दे भी दिया, गलती हो गई, फोन कर दिया, भैया भागा चला रहा भाई गाड़ी लेके, वो शर्म कर यार, तू बहन का घर आबाद करने आया कि बर्बाद करने आया? जी 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 सारी औरतें सुने, मर तो सकता है, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। हक बात है। ये याद रख, तलाक भी मर्द कब देता, जब परेशान हो जाता। हक बात है। खुशी में कोई तलाक नहीं देता। जी जब ये यहाँ चल के बैठती है और जुई से ज्यादा शर्त काटती है, तब मर्द तलाक देता। जी जी तू कदम बेहतर कर, तू बीवी है, अगर तुझे शोहर ने डांट भी दिया, तेरा हक था, डांट सुन लेती, मुस्कुरा देती, शोहर ही तो है तेरा, मुझे बता इसके सिवा दुनिया में तुझे देखने वाला कौन है, तेरा ख्याल रखने वाला कौन है, तूने तो फला का बेटा समझ के